Morning students. Today next video from chapter gravitation. The fourth video is there for class 9 physics. Same pressure in fluid. First of all, you should know about the pressure. Pressure in solid already it was given in video third, but fluid pressure. What is pressure in fluid? Fluid means either liquid or gas. The pressure applied either liquid or gas is known as fluid pressure. You know that the pressure applied by liquid is more than that of pressure applied by gas, because the mass of liquid is very more than that of the mass of gases. Okay? In liquid, we know that the pressure applied in liquid is the pressure is when anybody is floating or sink in a liquid, then pressure of liquid is applied on it, but it is balanced by the buoyant force, because how much liquid is displaced by this floating body or immersed body, that the mass of that liquid is reduced from that body, and the net force is the mass of weight of body, and the weight of this liquid displaced by it is reduced. For example, if you are pulling full bucket water in outside of the well, then it appears very heavy. When you dip it inside the water in well, and when it is sinked fully inside and you pull, it appears very light. Why? For the example, this is the example, very good example, because if the bucket of water weight is 20 kg with bucket and water, and outside of this water body, if it is immersed in liquid, I mean well, the water in well, and fully immersed inside, and we pull it, it fills nearly 12 kg. 8 kg, 8 kg weight, how much? Where is it gone? Because it displaced water, the water is displaced by bucket is 8 kg. So the weight of displaced water is reduced inside the water body. Hence, it appears 20 minus 8 is equal to 12 kg only. Okay, students? Likewise, in gas also applied pressures, and buoyant force is also applied in gas also. I have written here buoyant force. It is the process of applying upward force in fluid is known as buoyancy. The force applied by fluid when a body is kept in fluid, that force applying upward force so that it appears lighter when it comes out from the this fluid. मेरा मतलब है, जब किसी बॉडी को लिक्विड में आप डालते हो, तो लिक्विड के अंदर यदि ऊपर करते हैं तो वाटर बॉडी के अंदर वो हल्का लगता है, लेकिन वाटर बॉडी से ऊपर आते ही वो भारी हो जाता है. तो फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड ही नहीं हुआ, फ्लूइड का मतलब है एयर भी. एयर में भी बाइंड फोर्स लगता है, लेकिन एयर में जो एयर का जो वेट है, जैसे 10 लीटर एयर का वेट नियरली 50 ग्राम है सपोज, तो आपके वेट में से 50 ग्राम ही कम होगा, या कोई भी बॉडी जो एयर में है. लेकिन यदि वही बॉडी 20 केजी का है और उसने 10 लीटर पानी को हटा दिया, तो 10 केजी उसका वेट कम हो गया, और वो 10 केजी उस वाटर बॉडी के अंदर 10 केजी का ही वो आप ऊपर उठाओगे तो केवल आपके हाथ में 10 केजी का वेट फोर्स ही लगेगा, यानी 10 न्यूटन वो रिड्यूस हो जाएगा.
तो लिक्विड में बाइंड फोर्स अधिक लगता है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी बहुत अधिक होती है किसकी तुलना में, गैस की तुलना में, जबकि दोनों को हम फ्लूइड ही कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स लगने की इस प्रक्रिया को, जो लिक्विड के अंदर अपवर्ड जो फोर्स लगता है, उस प्रोसेस को ही हम बायंसी कहते हैं, और इस फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं, जिसके द्वारा लिक्विड के अंदर कोई भी बॉडी हल्का लगता है। जितना ही पानी उसका जितना ही वॉल्यूम अधिक होगा, वो उतना ही लिक्विड को अधिक हटाएगा और उसके वेट में से उतनी ही कम होगी। आपने देखा होगा कटोरी में कटोरी को आप रख देते हो पानी पे तो तैरती है, थोड़ा पानी में डाल देते हैं तो भी तैरती है, थोड़ा डूब जाती है लेकिन तैरती है। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी सीमा आती है जहां तक वो तैरती है, लेकिन डूबती जाती है, थोड़ा अधिक सिंक होती जाती है, और कुछ ज्यादा ही डाल देंगे तो डूब जाती है। क्योंकि जितना वो पानी हटाया उस कटोरी ने, उस हटाए गए पानी का वेट उसके वेट से जब कम रहेगा, उसका वेट यदि अधिक रहेगा तो वो डूब जाएगा। लेकिन यदि आप जितना पानी उसने हटाया उस पानी का वेट उस कटोरी के वेट से अधिक होगा तो ऊपर उठा रहेगा। जो ही इक्वल होगा पूरा डूब कर तैरेगा, लेकिन जो ही उससे कटोरी का वेट मतलब जितने हटाए गए पानी का वेट, उसमें आपने कटोरी में पानी भर दिया पूरा, तो उसका वेट उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट से अधिक हो गया, इसलिए वो सिंक हो गया। लेकिन फिर भी सिंक होने के बाद भी उस पर एक बाइंड फोर्स लगा हुआ है। उस कटोरी भरे हुए कटोरी को आप पानी के अंदर उठाएंगे तो आपको हल्का लगेगा, पानी से ऊपर भारी लगेगा। ठीक है। अब आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी बॉडी को आप किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं या फ्लूइड में, कहीं फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों में लगता है, तो इमर्स करने पर उसका वेट कम लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसने कुछ न कुछ तो लिक्विड को हटाया, कुछ फ्लूइड को जब हटाया तो हटाए गए फ्लूइड के वेट के बराबर उसके वेट में से कमी हो गई। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हेन ए बॉडी इज immersed in a liquid totally or partially, it experience upward force. When a body immersed, totally immersed कर देते हैं, पूरा डुबा देते हैं या थोड़ा सा डुबाते हैं, तो दोनों कंडीशन में ये ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस करता है, यानी वो हल्का लगता है। जो जो लिक्विड में जाता है वो हल्का लगने लगता है। तो ये हटाए दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वह फोर्स इस लिक्विड के द्वारा हटाए गए, इस बॉडी के द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए रिलेटिव डेंसिटी स्टूडेंट्स, इसके बाद है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये बताता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से ही किसी की डेंसिटी को डिवाइड करते हैं आप, तो वह रेशियो ही रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का सॉल्यूशन मैं किया हूं और 17 भी क्वेश्चन अच्छा है जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, मैं उसको भी अभी करूंगा। इसके बाद आप पहले 16 को देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है फोर्स बताइए किसके बीच, अर्थ और सन के बीच। देखिए एमई मैंने लिखा है, तो एमई का मतलब है मास ऑफ अर्थ, दैट इज गिवन 6 into 10 power 24 kg। ms मास ऑफ सन, दैट इज गिवन 2 into 10 power 30 kg, and distance between both is 1.5 into 10 power 11 meter. You have to find out the force between earth and sun. How much? See, I have done it. F is equal to GMEM by GME into MS upon R square. The value is already put here. मैंने रखा है, देखिए आप, G की वैल्यू है, ME अर्थ का मास है, ये सन का मास है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 into 10 power 11 का स्क्वायर किए हैं। और देखिए पावर इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए 6 2 या 12, 12 में 6.7 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। इस सोल्यूशन आसान हो जाएगा आपका। और ये पावर्स को एक जगह एडजस्ट कर दिया, नीचे इसका स्क्वायर किया 1.5 का, 2.25 into 10 power 22 है। इसके बाद इसको 54 - 11 किया
तो 54 माइनस 11 किया तो 43 आया। 43 से नीचे वाला जो 22 पावर गया वो माइनस हो गया। अब इसके बाद जो 50, इसको देखिए, मैंने डेसिमल को 2 डिजिट हटाया है, इसको भी हटाया है, तो 8040 ये आया है अपॉन 225। इसको कैंसिल किए हैं, पहले 5 से कैंसिल किए हैं, फिर 3 से कैंसिल किए हैं, तो आ गया 536/50। और ये पावर को एडजस्ट कर दिया, 10 पावर जो 43 बचा था उसमें 22 माइनस हो गया, 10 पावर 21 बच गया। और इसको हटाने के बाद ये आया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल रखते हैं, तो इधर लाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा। इस तरह 3.57 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे इसके बाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन 17 always asked by the students. That's why I have mentioned this question also. See, in this question, a stone is falling from 100-meter height. Same time, the another stone is thrown at the speed of 25 meters per second, upward direction. We have to find out when and at how much distance from the earth both stone will meet to each other. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पत्थर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है 100 मीटर ऊंचाई से, और सेम टाइम में दूसरा पत्थर भी नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको ये फाइंड करना है कि ये दोनों अर्थ से कितनी हाइट पर मिलेंगी और कितने सेकंड बाद मिलेगी। हमने लिखा है कि ये दोनों जो है अर्थ से x मीटर हाइट पर मिलेंगी और ये 30 सेकंड के बाद अर्थ से x हाइट पर 30 सेकंड के बाद मिलेंगी। देखिए तो मोशन का थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आप जानते हैं h = ut + ½ h²। तो g के लिए हमने 10 ले लिया है, तो ये ऊपर से जब नीचे आ रहा है उसके लिए फर्स्ट स्टोन के लिए है ये। फॉर द मोशन ऑफ फर्स्ट स्टोन h विल बी 100 - x। देखिए जब यहाँ मिल रहा है x मीटर पर अर्थ से, तो ऊपर से ये डिस्टेंस 100 - x होगा, तो 100 - x लिया। और u 0 है, जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट का u 0 होता है तो ये u 0 हो गया। फिर तो 0 इंटू t, इस तरह कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन मिल गया हमको लास्ट में कि 100 - 5t² = x की वैल्यू एक इक्वेशन में मिल गया। सेकेंड स्टोन जब ऊपर थ्रो किया जाता है तो उसकी हाइट वो x मीटर गया है, तो h की जगह x हो गया, पर u की जगह पर 25, t की जगह t नहीं मालूम है, फिर हाफ gt² में g 10 रखा। फिर ये इक्वेशन मिल गया x = 25t - 5t²। आपको इसमें सेम क्या है, x जो है x दोनों में आ गया। देखिए x यहाँ भी आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वलाइज कर दे रहे हैं। दोनों x की वैल्यू है इसलिए इक्वल हो जाएंगे, और सिंप्लीफाई होगा तो -5t² कैंसिल हो जाएगा। 25t = 100, तो t = 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगी। फिर इस t का जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में देखिए रखे हैं t की वैल्यू 100 - 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 = 80, 100 - 80 = यहाँ सोल्यूशन है 20 मीटर। तो ये बोथ स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड एट 20 मीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आप देख देंगे दोनों स्टोन ये अर्थ से 20 मीटर हाइट पर 4 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स।